Hello, good morning to all of you. Hope I am audible. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Okay, today I am going to discuss some numerical related to the rolling power and rolling forces, right? Already I have discussed about the working formulas, right? Okay, and hope you can enjoy the sessions, right? Okay, look at the questions. Hope you do have the copy, pen and calculator, right? Yes or no? बीच बीच में आप लोग बात करते रहो. Yes, sir. Okay. Okay, look at the questions. Please, Ravi Kumar, read the question. Ravi, Ravi भाग गया. Ravi Sharma, Yes, sir. क्वेश्चन देखो क्या दिख रहा है. If mu is equals to 0.8 in cold rolling, determine length of projection of arc of contact. B the velocity of वो क्या लिखा हुआ है slab. Of slab. Velocity of slab at the exit. C roll press. Roll pressure. Neglect length. Neglect the lateral spread, right? इस lateral spread कहने का मतलब क्या हुआ? Longitudinal stress and longitudinal strain, lateral strain पढ़े हो आप लोग ना? Similarly यहाँ पे lateral strain मतलब क्या हुआ? विड्थ के डायरेक्शंस में या चौड़ाई के डायरेक्शंस में कोई चेंजिंग नहीं होता. दैट इज व्हाई इट हैज बीन गिवन द क्वेश्चन दैट यू हैव टू नेग्लेक्ट द लेटरल स्प्रेड. लेटरल स्प्रेड जो भी होता है उसको हम क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे. एज्यूम करेंगे कि इनिशियल विड्थ विल बी इक्वल टू फाइनल विड्थ. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? कैन यू हियर मी? Yeah. Okay. Okay, write down the given data. What is the given data here? Please tell me. Given data is Mu 0.08. okay, mu is equal to 0.08, right? Again, length of projections of the arc is to be calculated, right? तो यहाँ पे आपका दिया हुआ W naught as is given, you have to neglect the lateral spread. That will be W naught will be equal to WF, right? And that will be equal to how much? 80 mm, right? Look at the questions. If there is any mistake, then tell me. Okay, capital R is the roll radius. That is equal to how much? 800 mm, right? 800. T naught is equal to 400 mm, right? T naught is equal to 400 mm, right? And V naught is equal to 200 mm per second, right? Load, right? That is the rolling load. That is the roll forces, right? Roll forces is given here 4 mega Newton, right? Mega Newton matlab 10 to the power 6 Newton. Clear? What you have to do? First of all, what is to be calculate? A known thing is what? That is the length. Projector length is to be calculated first. Second, the velocity of the slab at exit, that is Vf, is to be calculated, right? And next is roll pressure, right? Roll pressure is to be calculated, right? What is the roll pressure, right? Can you? Okay. Please, how do we proceed for the solution? First of all, we have to find the length of projections, right? And what is the formula? What is the formula? Root Anyone? under R into delta H. Okay, first of all, we have to L is equal to root under R into delta H. R into delta H, right?
Okay, R is given here, but delta H is to be calculated, right? And delta H is what? Delta H is nothing. Delta H is equal to H naught minus HF, right? We have given here the H naught is equal to how much? H naught is equal to, yeah, T naught is equal to how much? This is a 400 mm, but HF is not given here. Yeah, TF is not given here. What we have to do? We have to apply the equation, that is delta H. Delta H can also be written as, sorry, delta H can also be written as mu square into R. Very good. So mu, that is equal to mu square into R, capital R. Okay. Please tell me the value. प्लीज टेल मी द वैल्यू. यदि म्यू स्क्वायर आर को यहाँ पुट करोगे तो यहाँ भी आ जाएगा ना. देखो ध्यान से देखना, आर इंटू म्यू स्क्वायर इंटू आर, दैट विल गिव्स यू आर. आर स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा आर इंटू म्यू, राइट. टेल मी द वैल्यू हियर. म्यू इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है जी? प्लीज टेल मी, आर का वैल्यू कितना है? 800 800 इंटू म्यू वैल्यू, म्यू का वैल्यू है 0.08. कितना हो जाएगा? 88 64, राइट. 64. देखो कितना आ जाएगा, चेक करो तो. सही है अगला? हाँ सर सही है. सही है. ओके, हाँ सर वेरी ठीक. गुड. तो मेरे पास 64 आ गया करीब, राइट. 64 आ गया मेरे पास. क्या आ गया? 64 mm इज यूनिट. हमेशा लिखिएगा आप लोग. बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, यूनिट नहीं लिखते हैं, राइट. तो 64 mm विल बी द लेंथ, राइट. विच टाइप ऑफ लेंथ? लेंथ ऑफ प्रोजेक्शंस ऑफ द आर्क, राइट. और आर्क ऑफ कांटेक्ट याद है ना. दिस इज द कांटेक्ट लेंथ. आर्क का कांटेक्ट लेंथ है विद द रोलर, राइट. विद द रोलर. ये रोलर है, राइट. दिस इज द रोलर. कांटेक्ट लेंथ क्या है मेरे पास? दिस इज द एलपी. ठीक है. एलपी में भी ये इसको भी बोलते हैं, ये जो दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं इसको भी बोलते हैं एलपी. करीब करीब दोनों का लेंथ हम एज्यूम करते हैं दैट विल बी सेम, राइट. ठीक है. तो दिस इज द प्रोजेक्शंस ऑफ द, ठीक है. प्रोजेक्शंस कभी कभी यहाँ भी लेते हैं ऐसे, ठीक है. यहाँ पे प्रोजेक्शंस इसको भी लेते हैं, राइट. इसको भी द प्रोजेक्शन, राइट. तो ये करीब करीब हम मानते हैं. and the formula will be what? Formula will be mu square into sorry, L is equal to root under R into delta H, right. Hope it is clear to all of you. Yes, yes or no? Hello. Yes sir. Yes, sir. Next next is what is to be determined. Next is the unknown thing. Next unknown thing, please tell me what is the next unknown thing. B is, in B, the velocity of the slab at exit, right. So we have to apply the equations. Which type of equations will we apply here? Please tell me. W naught T naught V naught is equals to V1 VF TF V. Please calculate. ठीक है, वॉल्यूम फ्लो दैट, राइट. यहाँ से हम लिख सकते हैं कि T नॉट इंटू W नॉट इंटू T नॉट इंटू W नॉट इंटू W नॉट, और क्या हो जाएगा जी? L नॉट, राइट. L नॉट या V नॉट, ठीक है. वेलोसिटी की टर्म में लिख रहा है V नॉट. दैट विल बी इक्वल टू TF इंटू W नॉट, सॉरी WF इंटू VF, right. VF is to be determined here, right. Okay. So TF will be what? TF will be what? So TF will be equal to T naught, sorry, T naught, yes, T naught minus delta H. Can you write or not? T naught minus delta H. Can we write or not? T naught minus delta H. Can we write? Yes or no? Please tell me. Yes sir.
ओके, डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच इज इक्वल टू एच नॉट माइनस एच एफ, राइट? डेल्टा एच इज इक्वल टू एच नॉट माइनस एच एफ। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? एच एफ निकालना है। तो ये जो इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? एच नॉट माइनस एच एफ या टी नॉट माइनस डेल्टा एच, राइट? ठीक है, तो डेल्टा एच का वैल्यू यहाँ से हमने नहीं निकाला था, उसको निकालिए 0.08 स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा ये आर। ठीक है, तो आर का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया जी? आर का वैल्यू कितना आ गया? 800। ठीक है, प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। 5.2 हाँ, किस 5.12 किसका आया? सर मेरा। मनदीप, वेरी गुड। 5.12 mm, राइट? तो टीएफ क्या निकल जाएगा जी यहाँ से? टी नोट। टी नोट कितना मेरे पास था? टी नोट का वैल्यू बताओ जल्दी से। 400 था, राइट? 400 माइनस 5.12, प्लीज टेल मी द वैल्यू। प्लीज टेल मी द वैल्यू। 400 minus 5.12, what will the value? 394.88. 394.88, very good Vasant, that will be in mm, right? ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से देखो, this equations will give you the value of VF, right? Okay, so what is unknown thing here? VF is only the unknown things, right? Because W naught is equal to WF, so that can be eliminated here. T naught is equal to, put the value here, T naught is equal to 400 into V naught का वैल्यू आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है V naught का वैल्यू? 200, right? 200 is equal to 394.88 into VF, right? VF will be equal to how much? Please tell me. VF is equal to how much? 400 into 200 dividing by 394.88. Please tell me the value. Please tell me the value. 202.59. कितना आया? 202.59. 202.59 593, sir. mm per सेकंड। ओके, वेरी गुड बसंत। और किसी का आया ये वैल्यू? सेम है सर। हाँ सर आया। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो समझ में आया ना किस तरीके से हमें बनाना है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? रोलिंग में इसी तरीके का क्वेश्चन आता है आपका गेट एग्जामिनेशन में और आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन, राइट? ठीक है, नाउ व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड? नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? नेक्स्ट इज टू रोल प्रेशर, राइट? द रोल प्रेशर, हाउ द रोल प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड? देखो, तो रोल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखेंगे? रोल प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स पर यूनिट एरिया, right? What will be the pressure? Pressure will be equal to force per unit area, right? The pressure will be equal to force per unit area, right? ठीक है, तो ये एरिया कौन सा हो जाएगा? याद करो, कल हमने बताया था ना, एरिया यहाँ से कौन सा एरिया लेंगे? दिस विल बी द L and this will be the W, right? This will be the W, right? This area will be applied here, right? Area will be this, right? W into L, right? तो प्लीज टेल मी F का वैल्यू कितना दिया हुआ था क्वेश्चंस में? F का वैल्यू दिया हुआ था यहाँ पे 14 मेगा न्यूटन, राइट? दिस इज 14 मेगा न्यूटन, राइट? 14 मेगा न्यूटन, राइट? तो मेगा न्यूटन क्या करेंगे? 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट विल कम्स इनटू द Newton, right? This is the in Newton. Okay, and this is area. Area is equal to W naught into L, right? Please tell me the value of W. W is equal to, yeah, width is equal to 80 mm, right? This is the 80 mm, and L is equal to how much? L is equal to how much? You have calculated here 64 mm, right?
64 mm. 80 into 64 mm, right? Area will be equal to 80 into 64 mm. Please tell me, this will be in Newton, force will be in Newton, area will be in mm square. Please tell me the value. Raghuvans, why you are entering late? So already I have taken the attendance. Hello? Hello? Yes, sir. Please tell me, Basant, what is the value? Sir, 112 into 10 to the power 5. कितना आया जी? 100 12 into 10 to 100 the power 5. 112 अच्छा, मेरा अलग आया है। कितना आया? इसको कैलकुलेट कितना आया? 734.375 हाँ, जो वही आया मेरा भी। न्यूटन 27 पर 2734.37 75 7.75 क्या आया ये क्या था? न्यूटन पर न्यूटन पर mm स्क्वायर। mm स्क्वायर, ठीक है। और न्यूटन पर mm स्क्वायर को क्या कहते हैं? न्यूटन पर mm स्क्वायर को क्या कहते हैं? मेगा पास्कल भी कहते हैं शायद ना? यस सर। मेगा पास्कल, ठीक है। तो ये क्या हो गया? और किसी को आंसर में कोई दिक्कत है? सबका आंसर मैच कर रहा है ना? हाँ सर, आ गया। 80 into 64, देखो चेक करो, जिसका नहीं आया है वो चेक कर लीजिए, राइट? ठीक है, 2734.375 विल बी द करेक्ट आंसर। मैंने भी अभी कैलकुलेट किया। तो पहला कौन बोले थे? बसंत। यस सर। हाँ, सर आप आ चेक गया करो सर, उसको। ये आंसर आ गया ना? कर ओके। लिए सर, इतना ही आंसर। This will be equal to how much? 2734.375 megapascal, right? This will the megapascal. This will be the pressure that will be exerted on the workpiece by the clear? Okay. Look at this. Okay, look at these questions. Hello. Read out the question. हेलो कुणाल, रघुवंश, इतना लेट से क्यों आते हो जी? सर स्टार्टिंग में ही आया था, अभी डिस्कनेक्ट हो गया था सर नेटवर्क के कारण। तुम कहाँ है अभी? सर घर पे ही हैं। तो हम भी तो घर पे ही हैं, तुम्हारा पड़ोस में ही है। अभी तो कुछ नहीं ऐसा हुआ। नो सर, मेरा ये नेट। आइडिया। अच्छा, ये क्वेश्चन पढ़ो रघुवंश, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ओके सर। इन अ सिंगल पास रोलिंग ऑपरेशन a 20 millimeter थीन। सर थीन क्या है सर? थीन के बाद सर थिक प्लेट। थीन प्लेट विथ W0 बराबर 100 mm is reduced to 18 mm. The roller radian capital R is equal to 250 millimeter and the rotational speed is 10 rpm. The average flow stress of the plate m to the power plus is 300 megapascal. The power required is राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ? आपका गिवन डाटा दिया हुआ, राइट?
प्लीज राइट डाउन द गिवन डाटा, राइट। सबसे पहले क्या करना है, गिवन डाटा निकालना है, उसके बाद वर्किंग फार्मूला निकालना है, राइट। तो आपका क्या लिखा है, सिंगल पास, राइट, जस्ट यूजिंग ए 2 सेट ऑफ रोलर, जस्ट सिंगल पास में ही हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है या रोलिंग करना है, राइट। ठीक है, तो एक ही पास की हम बात कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे थिकनेस क्या होगा, इनिशियल थिकनेस इज टी नॉट एंड दैट इज इक्वल टू 20 mm, राइट। एम आई राइट? TF is equal to how much? Please tell me. TF is equal to how much? 18 mm. 18 mm. Very good. W naught is equal to how much? W naught is equal to 10 100 100 mm. 100 mm, right? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया ना, तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे कि W naught will be equal to WF, right? W naught will be equal to WF. That will be our assumptions, right? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इस चीज की बात करते हैं हम आपका रोलर रेडियस, राइट। रोलर रेडियस दैट इज R, कैपिटल R इज इक्वल टू 250 mm, राइट। यहाँ पे द एवरेज फ्लो स्ट्रेस ऑफ द प्लेट मटेरियल, दिस इज M प्लस मतलब मटेरियल, ठीक है, प्लेट मटेरियल की बात करते हैं, तो एवरेज फ्लो स्ट्रेस दैट इज सिग्मा F, राइट। सिग्मा F इज एवरेज, राइट, ऊपर बार लगा दिया मतलब एवरेज, राइट, दैट इज इक्वल टू 300 मेगा पास्कल, राइट। ठीक है, और कुछ दिया हुआ जी, यस, दिया हुआ क्या, आरपीएम दिया हुआ, राइट। क्या दिया हुआ, आरपीएम, तो n इज इक्वल टू 10 आरपीएम, राइट, रिवॉल्यूशंस पर मिनट, राइट। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द पावर, वी नो द पावर इक्वेशंस ऑफ पावर, पावर इज इक्वल टू t इनटू ओमेगा, ठीक है, तो t इज द टॉर्क है, राइट। हाँ, प्लीज टेल मी। ये WF और W इनिशियल को इक्वल कैसे किए हैं आप? अरे हमने क्या अभी क्या है, एजम्पशंस हमने लिया ना, एजम्पशंस ले लिया ना, इसमें कुछ क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ, तो एज्यूम कर लो कि दोनों बराबर होगा, ओनली चेंज विल बी देयर विल बी चेंजेस इन द लेंथ ओनली, राइट, क्लियर। ठीक है, तुम एज्यूम नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जरूरत भी शायद नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो W नॉट इज इक्वल टू 100 mm दिया हुआ, अब बताओ पावर इज इक्वल टू T टॉर्क इनटू ओमेगा, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर। ओके, एंड ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई n इंटू 2 पाई n डिवाइडिंग बाई 60, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा। याद आया, ओमेगा इज इक्वल टू n के टर्म में यदि रहता है तो ओमेगा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 2 पाई n बाई 60, that will be this will be in the, this is in रेडियन पर सेकेंड, राइट। ठीक है, और ये ओमेगा क्या हो जाएगा आपका, ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट, सर क्या आ जाएगा ये स्ट्रेस पेपर में बार लिए हैं वो सर, सर ओमेगा को 2 पाई बाय n, सर ओमेगा 2 पाई n बाय 60 क्यों, ये तो एंगुलर स्पीड है ना। हाँ, एंगुलर 60 किस लिए लिए, क्योंकि यहाँ पे मीटर में मिनट में दिया हुआ ना, आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट। अंकित डोंट राइट एनीथिंग, आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। इसको सेकंड में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो बेसिक फार्मूला है जी, आप लोग शुरू से जानते होंगे। ओके, इज इट क्लियर और नॉट, क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ये फॉर्मूला हमें काम लगेगा, राइट। ठीक है, अब क्या करना है, हमें टी निकालना है, तो टी कैसे निकालोगे, याद करो, टी इज इक्वल टू क्या बताया था हमने, एफ इंटू ए इंटू एल, कल बताया था हमने, एंड ए का वैल्यू क्या लेंगे, 0.4544 हॉट वर्किंग, राइट, हॉट वर्किंग ऑपरेशंस, एंड 0.54 cold operations, right, cold working operations, yes or no, yes or no, yes or no, यस सर। ओके, तो यहाँ पे कहीं दिया हुआ हॉट वर्किंग इन ए सिंगल पास रोलिंग ऑपरेशन, द प्लेट इज इतना इतना इतना, रोटेशन स्पीड इतना डी, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे कोल्ड वर्किंग ऑपरेशंस को एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ हॉट वर्किंग कंडीशन नहीं दिया, ठीक है। इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज फोर्स
इंटू ए कितना हो जाएगा 0.5 इंटू एल। अब बताओ एल का कैसे फॉर्मूला, एल का फॉर्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू रूट अंडर कैपिटल आर इंटू डेल्टा एच, राइट। प्लीज टेल मी द वैल्यू, इसका तो वैल्यू आप निकाल सकते हो ना, इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो ना जी। रूट अंडर कितना है बताओ 250 गुना डेल्टा एच की हम बात कर रहे थे, टी एफ टी नॉट माइनस टी एफ, देखिए यहाँ से टी नॉट माइनस टी एफ इक्वल टू 2 आएगा, राइट, दैट इज इक्वल टू 2। तो कितना हो जाएगा आंसर बताइए, वैल्यू प्लीज टेल मी द वैल्यू। 22.36 है। 22.36 mm, वेरी गुड। समोजित का है, उतना ही आएगा। ओके सर वेरी गुड, हाँ सर इतना ही आ रहा है। ठीक है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है जी, आपको कैलकुलेट करना है फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे जल्दी से बताओ, फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, यहाँ से फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, एल तो पता चल गया, तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, एवरेज फ्लो स्ट्रेस, राइट, एवरेज फ्लो स्ट्रेस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज फ्लो टी स्ट्रेस से डिवाइड करके नहीं निकल जाएगा सर डायरेक्ट, क्या डिवाइड करोगे, ये सब चीज टी आपको क्या क्या निकालेंगे कुणाल उससे भी कुणाल बोल रहे हो, डिवाइड, यस सर डिवाइड करके भी आ क्या जाएगा। डिवाइड, नहीं डिवाइड क्या करोगे बताओ ना, तुमको अननोन थिंग निकालना पड़ेगा। देखो हम क्या निकाला टी इंटू ओमेगा, टी निकालना है पहले ना, तो टी को क्या निकालेंगे, टी का निकालने के लिए फोर्स निकालना पड़ेगा इंटू एल ओके निकालना सर, पड़ेगा, लेंथ हमें निकल गया, ठीक है, हमें ए का वैल्यू पता चल गया यहाँ से जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, कल क्लास में जो कराया था मैंने, एफ का वैल्यू निकालना है। तो एफ का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सिग्मा फ्लो स्ट्रेस दिया हुआ है, ठीक है, तो स्ट्रेस इंटू एरिया, ठीक है, सिग्मा एफ इनटू एरिया, कौन सा एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया, याद है अभी जो एरिया हमने बताया था, कौन सा एरिया बताया था, यही एरिया बताया था, याद करो, यहाँ पे एल एंड दिस विल बी डब्ल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एरिया दैट इज एल इंटू डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू नॉट या जो भी बोलो, दोनों सेम हमने लिया था, राइट, ठीक है। अगर प्लीज टेल मी द वैल्यू 300 इंटू एल कितना आ गया मेरे पास, ये वैल्यू आ गया 22.36 इंटू डब्ल्यू नॉट कितना दिया हुआ है मेरे पास 100 दिया हुआ, राइट, 100। प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ फोर्स, हाउ मच द फोर्स इज देयर, सर 10⁶ इंटू नहीं करेंगे क्या इसमें? 10 टू द मेगा पास्कल है, हाँ, तो मेगा पास्कल को यदि 10⁶ नहीं करोगे तो ये तो एरिया क्या है एमएम में निकल गया ना, तो आपका फोर्स कहाँ से आ जाएगा, फोर्स क्या चीज में आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा, राइट। मेगा पास्कल का मतलब क्या हुआ जी, ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो एरिया एमएम स्क्वायर, दिस इज इन एमएम एंड दिस इज आल्सो इन एमएम, ठीक है, तो एमएम स्क्वायर कट जाएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा न्यूटन में। तो प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ फोर्स, 670,800 सर, 670 800 670 न्यूटन, राइट, दिस इज इन न्यूटन, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, फोर्स आ गया, राइट। प्लीज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टॉर्क, T is equal to torque is equal to 670,800 into 0.5 into L, right? L is how much, 22.36, right, 22.36. Please tell me the value, सर 7499544। फाइव फोर फोर
आपका आवाज नहीं आ रहा सर। हेलो, अभी अच्छा, आ अब रहा आ है, रहा है। पहले नहीं आ रहा था। अरे आवाज नहीं आ रहा था, बहुत हल्ला कर रहे थे हम यार। ठीक है, इसका वैल्यू नहीं सर, कितना आवाज ही नहीं बता आ रहा। देंगे सर? अच्छा, कितना आ रहा है आवाज? 74995544। 544। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये याद करो, ये क्या था, एमएम में था ना, तो न्यूटन एमएम था। तो ठीक है, न्यूटन मीटर में हमको करना है, टॉर्क न्यूटन इंटू मीटर। तो क्या करना पड़ेगा हमको, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो न्यूटन मीटर में आ जाएगा ना। अब बताओ, 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 7499। ठीक है, 0.544 क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर। ठीक है, या इसको करीब करीब कर सकते हैं, 75,500 न्यूटन मीटर अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं। ठीक है, ले लेते हैं, यस और नो, हाँ सर। यस और नो। ओके, ठीक है। अब ठीक है, अब आपको क्या करना है, पावर निकालना है, राइट। पावर इज इक्वल टू टॉर्क। ठीक है, 7500 मेरे पास पावर आ गया, 7500 इज द, सॉरी, टॉर्क इंटू 2 पाई इंटू एन। एन दिया हुआ है आपका, 10 दिया हुआ है, डिवाइडिंग बाय 60, राइट। ओके, ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये कट गया मेरे पास, एक शून्य कट गया, ये कट गया 2, 6। ठीक है, अब वैल्यू बताइए कितना आ गया, पावर का वैल्यू बताइए, पावर का वैल्यू कितना आ जाएगा जी? 7853.98। नहीं, पावर का वैल्यू कुछ और आएगा। देखो, आपका ये ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है ABCD आपका। किलोवाट में दिया है, तो इसको क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे। किलोवाट में यदि कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करेंगे हम, बताओ, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये तो वाट में आया था ना, अब किलोवाट हो गया। ठीक है, तो प्लीज टेल मी द वैल्यू। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। अरे ये 2 शून्य से 2 शून्य हट गया जी, 7.5 आ जाएगा। 7.5 इंटू पाई डिवाइडिंग बाई 3, देखिए कितना आ जाएगा, सर 7.85 आ रहा है। 7.85। हाँ सर। हाँ सर। आंसर तो नहीं मैच कर रहा है। अच्छा, 7.85 आ रहा है ना? हाँ हाँ सर, सर। मेरा भी यही। ओके ओके, 7.4। ये पावर की हम बात किए थे, तो एक रोलर के लिए हम पावर बताए थे, ये पावर होगा। और 2 रोलर के लिए हम बात किए थे, तो ट्वाइस हो जाएगा ना, याद करो, हम बताया था ना कल, राइट। टोटल पावर विल बी ट्वाइस ऑफ टाउ इनटू ओमेगा, राइट। इसको क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो प्लीज टेल मी अब कितना आ जाएगा, ट्वाइस कर दोगे टोटल पावर। ये सिंगल तब से 15.707 आ रहा है। क्वेश्चन में तो सिंगल के लिए लिखा है ना सर, बस इन ए सिंगल पावर कॉस्ट। दाल कहाँ समझते हो तुम, टोटल पावर निकाल। देखो यहाँ पे कुछ बोला है ऐसा कि सिंगल रोलर का पावर निकालिए, द पावर रिक्वायर्ड, टोटल पावर रिक्वायर्ड फॉर द रोलिंग ऑपरेशन। एंड दोनों का पावर निकालेंगे ना, दोनों रोल तो रोल करेगा ना, दोनों रोल का वहां पे अब क्या बोलते हैं, रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, 15.7 07 उसे डी वाला होगा था। D71 करीब करीब किलोवाट, राइट। So D1 डी will be the ऑप्शन। correct, D1 will be the correct choice here. Clear? Clear? Clear to everyone or not? यस सर। यस सर। Okay, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बना के रखिए आप लोग। सेम क्वेश्चन है, प्रोसेस सेम है। स्क्रीनशॉट लिया आपने, स्क्रीनशॉट लिया आपने। यस सर, ले लिया। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका काम आएगा। दोनों सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज कर दिया है हमने, है ना। सब पीडीएफ नहीं भेज दीजिएगा। पीडीएफ भेज देंगे बाद में, जहाँ नेट का इशू है थोड़ा सा, तुम लोग तो भेज ही दे रहे, धीरे धीरे भेज देते हैं। ठीक है, ओके, टाइम अब खत्म होने वाला है। आप लोग देखो, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। कुणाल,
कुणाल कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है, आप लोग पूछो क्या कोई दिक्कत है? अच्छा मैं एक बार बोल देता हूँ, अंकित अटेंडेंस में बोल देता हूँ, अंकित, बसंत, दशरथ, कुणाल, लक्ष्मण, मनदीप, नफीजा, प्रिंस, रघुवंश, राहुल, राजा राणा, रवि कुमार शर्मा एंड रवि कुमार, ऋतिक, सोमजीत। रवि कुमार चला गया कहीं क्या? कुछ स्टूडेंट है यहाँ पे, पता नहीं आते हैं लेकिन क्लास में नहीं रहते हैं ना, ऑन करके चले जाते होंगे, तो यही ना बात है, ये ना बात है। समझित तो समझित भी चला गया, नहीं सर है रवि वो लोग। है, और सब कहाँ चला गया? नफीजा, यस सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। ओके, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन, गेट में आया वो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, यदि नहीं बनता सर, है तो मेरे फॉर्मूला याद करेंगे हो जाएगा सर। याद करना है, कंसेप्ट भी तो क्लियर करना है। राहुल कुणाल देखो अभी क्या किया था हमने, ठीक है, पावर एक सिंगल रोलर का पावर कैलकुलेट किया था, ठीक है, तो वहां पे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, लेकिन हमको क्या बोला गया है, टोटल पावर कैलकुलेट करने के लिए, टोटल पावर रिक्वायर्ड फॉर द रोलिंग ऑपरेशन, तो उसको एक रोलर के लिए हम जो पावर लेते थे टी इंटू ओमेगा, तो उसको क्या करेंगे, ट्वाइस कर देंगे तो टोटल पावर हमें मिल जाएगा, राइट? Okay, thank you for being with us. I'm going to close the session right now. Hope this session will be fruitful to all of